So today's video I'll begin with a question, and the question is that what is your idea of God? जब हम गॉड की बात करते हैं या भगवान की बात करते हैं, बीट एनी रिलीजन, तो क्या एक आइडिया हमारे माइंड में आता है? हमने क्या किया है कि ओवर द टाइम्स इमेमोरियल भगवान को खुश करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. अब व्हाट हैपेंस इज इन दैट अटेम्प्ट वी हैव स्टार्टेड ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स टू गॉड. हम क्या करते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि जो भी चीज़ें हम भगवान को दे रहे हैं वो उनकी खुद की क्रिएशन है. सो मे बी व्हेन वी वर बीइंग क्रिएटेड बाय गॉड he had certain expectations from us. Now was that expectation that we will return the same things that he has already given to us? Do you think that God is so selfish? No, he is not. Beat any religion. हम सब क्या हैं, एक रेस में चल रहे हैं जहाँ पे हम गॉड को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. But this video is going to talk about a whole different perspective, and I believe that this is one thing that maybe God would expect. जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि अगर जो कंपटीशन होता गॉड्स के बीच में, हिंदू गॉड, मुस्लिम गॉड, क्रिश्चियन गॉड, सिख गॉड, तो क्या होता, वो सब लोग क्या करते? अगर जो हिंदू गॉड ने हमको 2 हाथ दिए थे, 2 पैर दिए थे, तो मे बी क्रिश्चियन गॉड 3 हाथ देते, 3 पैर देते, तो एक कंपटीशन चलता. बट नो, we all humans have been made same. And this is what this poem, a very short poem written by Leigh Hunt, that is prescribed in class 10 ICSE syllabus, is going to talk about a new and the main idea of God and what God expects from us. So without wasting any time, I'll begin the poem. I'll give you a detailed explanation of it in Hindi along with all the literary devices and all the necessary notes. So do watch the video till the end, and I hope you have liked the video and subscribed to the channel, and do share it as well. If you like the video, you can pin your comments as well. So let us move forward and have the text on the screen, and line by line I'll explain it to you, and I promise you'll be able to get a moral lesson from this and imply it to your life. But before I begin the poem, I'll give you a brief summary of it. This is about a Sufi saint called Abu Ben Adham. He was a person who was a very nice person when it came to dealing with fellow humans around him. He always was very obedient to his religion, plus he was always very careful and considerate about टेकिंग केयर ऑफ पीपल अराउंड हिम. वो हमेशा एक अच्छे रिलीजन के फॉलोअर भी थे, बट खाली रिलीजन के फॉलोअर नहीं थे. ही ऑलवेज टुक केयर ऑफ पीपल अराउंड हिम. एक रात में क्या होता है कि ही वॉज पीसफुली स्लीपिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ वेकनिंग लाइट इन हिज रूम, और वो अचानक से उठ के बैठ जाते हैं. तो वो देखते हैं कि एक एंजल कुछ बुक में लिख रही है, और वो उससे पूछते हैं कि क्या लिख रही हो. सो दिस एंटायर पोएम इज अबाउट दैट सेम इंसिडेंट. वेरी शॉर्ट पोएम इन 2 स्टैंजास. आई विल क्विकली कंप्लीट इट एंड आई होप यू लव इट. सो लेट अस बिगिन. So the poem begins with a very beautiful line that is a blessing to Abu Ben Adham. He says, Abu Ben Adham, may his tribe increase. तो पोएट सबसे पहले लाइन में बोलते हैं और वो ब्लेसिंग देते हैं अबू बेन आदम को. कहते हैं अबू बेन आदम जैसे लोग और बढ़ें और ज़्यादा हों इस दुनिया में. बिकॉज people like Abu Ben Adham were very less, who were very considerate, who were very careful about people around them and their emotions. So he says, may people like Abu Ben Adham increase more. This was not particularly about the tribe of Abu Ben Adham, लेकिन अबू बेन आदम जैसे लोग वो कहना चाह रहे हैं कि और बढ़ें और ज़्यादा लोग आएँ. बिकॉज दिस वर्ल्ड नीडेड मोर people who were lovable towards others. So he says, Abu Ben Adham, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace. So he says, Abu Ben Adham was sleeping and very peacefully he was sleeping. तो आपको पीसफुल स्लीप कब आती है? जब आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ नहीं हो रहे होते हैं. आप पीसफुली तभी सो पाते हैं जब आपने कुछ गलत नहीं किया है. यू हैव नॉट चीटेड समवन, यू हैव नॉट टेकन एनीथिंग अवे फ्रॉम समवन, एंड यू हैव नॉट बीन रॉन्ग टू समवन. तो हियर वी सी इन द सेकेंड लाइन अबू बेन आदम कहते हैं, अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस. वो बहुत पीसफुली सो रहे थे बट वो जग जाते हैं. वट वॉज द रीज़न? वाई डिड ही वेक अप इन दैट नाइट? लेट अस सी. एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम. सो वो देखते हैं उस रात में उनके रूम में कुछ प्रेजेंट था. वट वॉज देयर? देयर वॉज समथिंग यूनिक दैट हैपेंड. लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी. मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम. और उनका पूरा रूम वॉज फुल ऑफ लाइट. मेकिंग इट रिच ओवर हियर मीन्स कि पूरे रूम में लाइट भर गई थी, और वो जैसे लिली फ्लावर नहीं ब्लूम करता है बहुत ब्राइटली, तो पूरा रूम एक लिली फ्लावर की तरह लग रहा था, ब्लॉसमिंग एंड ब्लूमिंग. इट वॉज ब्यूटिफुल. एंड डू नॉट फॉरगेट, इट वॉज
midnight. So Abu Ben Adham has woken up because of this light that entered the room. Now what was the reason behind this light entering the room of Abu Ben Adham? Let us move forward and see. An angel writing in a book of gold. और फिर वो देखते हैं कि वो लाइट का सोर्स क्या था. उस लाइट का सोर्स था एक एंजल. देयर वॉज एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड. मार्क दिस. वो किस पे लिख रही थी एंजल? एक बुक ऑफ गोल्ड पे लिख रही थी. सो द बुक ऑफ गोल्ड ऑल्सो सिम्बलाइजेज मटीरियलिस्टिक थिंग्स. जो गोल्ड होता है वो क्या दिखाता है? मटीरियलिस्टिक वेल्थ, जिसके पीछे लोग भागते हैं, चीट करते हैं अपने आसपास के लोगों को जस्ट बिकॉज दे वांट दैट मटीरियलिस्टिक वेल्थ. तो वो एक गोल्डन बुक पे कुछ लिख रही थी अबू बेन आदम के रूम में बैठ करके. एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन आदम बोल्ड. अब ऐसे सिचुएशन में भले ही एंजल ही आ जाए आपके रूम में, आप क्या करेंगे? भाग करके कहीं और छुप जाएंगे या फिर अपने पेरेंट्स के पास भाग जाएंगे. यू विल बी स्केर्ड टू डेथ. बट अबू बेन आदम वॉज नॉट स्केर्ड बिकॉज ही न्यू कि उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया अपनी लाइफ में. सो एक्सीडिंग पीस हैड मेड हिम बोल्ड. सो द पीस दैट ही हैड, द बोल्डनेस दैट ही हैड, इट केम फ्रॉम वेयर? बाय बींग गुड टू पीपल अराउंड हिम. वो एक्सीडिंगली पीसफुल थे, मतलब बहुत शांत रहते थे और इसीलिए वो बोल्ड थे और वो जा करके एंजल से बात कर सकते हैं. नॉर्मल सिचुएशन में एक इंसान डर के भाग जाएगा, बट अबू बेन आदम मूव फॉरवर्ड एंड हैड द करेज टू गो एंड टॉक टू द एंजल. लेट अस सी व्हाट ही आस्क्स. And to the presence in the room he said, who is the presence over here? The presence is being referred to the angel. ये angel की बात की जा रही है. तो अबू बेन आदम जा करके उस angel से पूछते हैं. And what did he ask? What writest thou? तो वो कहते हैं क्या लिख रहे हो तुम? किससे पूछते हैं? एंजल से पूछते हैं. तो विजन रेज्ड इट्स हेड. और फिर विजन लिखते लिखते जब वो देखती हैं कि कोई उनसे कुछ पूछ रहा है तो वो अपना हेड ऊपर करती हैं. एंड लेट अस सी व्हाट वाज द रिप्लाई. एंड विथ अ लुक ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड the angel looked at Abu Ben Adham very sweetly. That means the angel knew who Abu Ben Adham was and it loved Abu Ben Adham. So with all sweet accord, बहुत politely और बहुत sweetly वो बोलती हैं अबू बेन आदम से. देखते हैं क्या बोलती हैं. Answered the names of all those who love the Lord. तो वो कहती हैं कि गोल्डन बुक में मैं क्या लिख रही हूँ? नेम्स ऑफ ऑल दोज हु लव द लॉर्ड. जो लोग भगवान को प्यार करते हैं, जो लोग गॉड को प्यार करते हैं, मैं उनकी एक लिस्ट बना रही हूँ. अब अबू बेन आदम तो बहुत रिलीजियस पर्सन था, तो उसको लगा होगा कि उसका भी नाम इस लिस्ट में होगा. ऑब्वियसली जब आप बहुत अच्छे होते हैं, आसपास के लोगों का ख्याल रखते हैं, लोगों के लिए अच्छाई करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गॉड आपको ब्लेसिंग्स देंगे. अबू बेन आदम ने तो पूछा कि व्हाट राइटर्स दाउ. उन्होंने बताया कि मैं लिख रही हूँ नेम ऑफ ऑल दोज हु लव द लॉर्ड, जो लोग गॉड को प्यार करते हैं. एंड इज़ माइन वन. अब ऑब्वियसली अबू बेन आदम बहुत क्यूरियस हुए, जैसे आप लोग भी क्यूरियस होते हैं जब आप कुछ वर्क करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर आपको रिवॉर्ड देगा, है नहीं? तो जब लिस्ट आती है आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका नाम होगा उस लिस्ट में, लेकिन अगर जो नहीं है तो आप सैड हो जाते हैं. आपने मान लीजिए बहुत वर्क किया है, साइंस एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है. यू एक्सपेक्ट दैट व्हेन द रिवॉर्ड विल बी गिवन योर नेम इज देयर, बट इफ़ योर नेम इज़ नॉट देयर यू विल फील सैड. तो वो पूछते हैं एंजल से. अब क्या बोलती है एंजल? तो पूछते हैं एंड इज माइन वन सेड अबू. Nay, not so, replied the angel. और एंजल कहती है no, your name is not there. Now how disheartening it should have been for Abu Ben Adham, जो इतना अच्छा इंसान है, सबका ख्याल रखते हैं और हमेशा रिलीजन की बात करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है. He would be very sad. So अबू spoke more low. अब अबू सैड हो गए. spoke more low का मतलब कि वो सैड हो गए थे. ऑब्वियसली हर कोई इस सिचुएशन में सैड हो जाएगा बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हैं, बट चीयरली स्टिल. लेकिन वो सैडनेस को बहुत देर तक अपने पास नहीं रहने देते, खुश हो जाते हैं. एंड व्हाट डिड ही से? एंड सेड आई प्रे दी. तो कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ. किससे? एंजल से. प्रे दी मीन्स एंजल से वो रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन. तो कहते हैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि एक लिस्ट आप और बनाइए, और वो लिस्ट ऐसे लोगों की होनी चाहिए जो अपने फेलो मैन को प्यार करते हैं, जो अपने आसपास के लोगों को प्यार करते हैं. अब उस लिस्ट में अगर जो आप मेरा नाम डाल सकते हैं तो प्लीज़ उस लिस्ट में मेरा नाम डाल दीजिए. तो दोज हु लव द लॉर्ड उस लिस्ट में तो नाम नहीं था अबू बेन आदम का, लेकिन वो चेयरफुली रिक्वेस्ट करते हैं एंजल को कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू पुट माई नेम इन दैट लिस्ट, जो लोग अपने आसपास के लोगों को प्यार करते हैं. बिकॉज अबू बेन आदम बहुत अच्छे से अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते थे. सो विल द एंजल फॉलो, विल द एंजल एक्सेप्ट, विल सी. एंजल रोट एंड वैनिश्ड. अब एंजल कुछ लिखती हैं तुरंत जब अबू बेन आदम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और फिर वैनिश हो जाती हैं, मतलब गायब हो जाती हैं. नाउ व्हाट हैपेंस
ahead, we'll see. The next night it came again with a great wakening light. और अगली रात वो फिर आती हैं उसी समय, और ग्रेट वेकनिंग लाइट, बहुत सारी लाइट लेकर के आती है अपने साथ, और पूरा ब्राइटनेस हो जाता है उस रूम में. नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाई हैज़ द एंजल कम अगेन. उन्होंने अबू बिन आदम का तो उस लिस्ट में गोल्डन बुक वाले में नाम लिखा नहीं. अब अबू बिन आदम ने कुछ रिक्वेस्ट किया था, लिखा तो था, बट वॉज इट एक्सेप्टेड और नॉट, लेट अस सी. तो अब एंजल क्या बोलते हैं, एंड शोड द नेम्स whom love of God had blessed. और फिर वो एक लिस्ट लेकर के आती हैं और दिखाती हैं अबू बिन आदम को कि ये देखो, ये लिस्ट गॉड ने भेजी है, और इसमें उन सब का नाम है जिनको गॉड ने ब्लेस किया है. अब वो कौन लोग हैं, क्या अबू बिन आदम का नाम इस लिस्ट में है या नहीं. एंड लो बिन आदम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट. And lo, that means be happy. Abu bin Adam's name was right on the top of that list. This shows that the poem and the poet wanted to convey to us that loving the Lord is not important. Loving the fellow man is important. People around you is important, because God might be testing us. तो जब अबू बिन आदम पूछते हैं एंजल से कि क्या उनका नाम उस लिस्ट में है जो लोग लॉर्ड को प्यार करते हैं, उसमें नहीं था. लेकिन जब वो रिक्वेस्ट करते हैं एंजल से कि मेरा नाम उस लिस्ट में डाल दो जो लोगों को प्यार करते हैं, वो लिखती हैं और वो चले जाती हैं. और फिर वो दोबारा आती हैं अगली रात में, और वो एक लिस्ट लेकर के आती हैं जिनको किसने ब्लेस किया था, गॉड ने खुद ब्लेस. दैट मीन्स द रियल ब्लेसिंग कम्स टू यू व्हेन यू स्टार्ट to realize your own value, and you start to realize the value of life of others around you. This is the core message of this poem. So what a beautiful poem was this. I hope you've loved it. Let us see some literary devices that are used in this poem. First is alliteration. Alliteration or consonants. तो alliteration क्या होता है, repetition of consonant sound. So we see that deep and dream and peace, हम देखते हैं कि डी और डी का रेपिटेशन है और पी और पी का रेपिटेशन है, तो ये क्या है, अलिट्रेशन है. दूसरा जब हम मूव करते हैं तो वो होता है एसोनेंस. एसोनेंस में क्या होता है, वाउल साउंड रिपीट होता है. तो उसी सेम लाइन में हम देखते हैं डीप, ड्रीम और पीस में ई रिपीट हो रहा है, ई ए रिपीट हो रहा है, और ई ए फिर से पीस में रिपीट हो रहा है. तो ये क्या है, एसोनेंस है. तो एसोनेंस और अलिटरेशन ये दोनों प्रेजेंट है. और फिर आता है सिमिली. सिमिली हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. सिमिली होता है कंपैरिजन. तो हम देखते हैं कि लाइक अ लिली दैट ब्लूम्स, जहाँ पे भी लाइक या एज वर्ड आ जाता है लाइन में, तो वो सिमिली का एग्जाम्पल होता है. यहाँ पे जो रूम ब्राइटली शाइन कर रहा था वो एक लिली फ्लावर से कंपेयर किया गया है. दैट्स वाई लाइक अ लिली इन ब्लूम, दैट लाइन इज अ सिमिली. एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए ए बी बी सी सी. What it is? A A B B and C C. पहली और दूसरी लाइन राइम करती है, तीसरी और चौथी लाइन राइम करती है, पांचवी और छठी लाइन राइम करती है. That's why the rhyming scheme of this poem is A A B B C C. So I hope this whole poem is properly understood, and now you'll not have any problem while solving your answers. Do pin your comments in the comment section. Thank you for having patience and watching this video. Thank you so much.